میں آف لائن میں ایک آن لائن کے ہیں فہیم نہیں ہے. خلاصۃ المنطق میں 2 کلاسیں جوائنٹ ہیں نا, اولا اور ثانیہ. آپ دور ہیں تو اس لیے آپ کو تشویش زیادہ ہوتی ہے. چلیے دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مجال التصدیق. علم کی 2 قسمیں کی گئی تھیں, تصور اور تصدیق. ٹھیک ہے, علم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک علم تصوری اور ایک علم تصدیقی. تصور کسے کہتے ہیں, علم کیسے کسے کہتے ہیں؟ انطباع صورت الشیء فی الذہن, ذہن میں کسی تصویر کا ابھرنا, کسی چیز کی تصویر کا آنا, کیا کہلاتا ہے؟ علم. اس کی 2 قسمیں ہوئی تھیں. ایک تصور کے معنی ہے ادراک الشیء, کسی چیز کا درک کرنا, حاصل کرنا. مجرد آپ نے جگ کہا, جگ کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی, یہ کیا ہوا؟ تصور. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیے ایک ہوتا ہے تصدیق. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ الاعتقاد بالشیء, کسی چیز کا یقین کرنا کیا ہوتا ہے؟ تصدیق ہوتا ہے. اور تصدیق کا استعمال کہاں ہوگا؟ تو کہا تصدیق کا استعمال جملہ خبریہ میں جو نسبت پائی جاتی ہے, جو حکم پایا جاتا ہے, اس حکم سے تصدیق کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے. مثال ہم نے دی تھی المناخ حار, ٹھیک ہے, جگہ گرم ہے. یہ سب گزشتہ ہے جو پیچھے ہم پڑھا چکے ہیں کل تک. کہا المناخ حار, جگہ گرم ہے. تو ہم نے گرم ہونے کا حکم کس پر لگایا؟ جگہ پر. تو تصدیق کس سے متعلق ہوگی؟ جگہ سے, گرم سے, یا جو حکم لگایا ہم نے جگہ کے بارے میں؟ کہا جو حکم ہم نے لگایا, دونوں میں جو نسبت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم نے کل مثال دی تھی الکتاب جدید, الرجل قائم. تو الرجل کے الگ معنی ہے, قائم کے الگ معنی ہے. کوئی تو ایسی چیز ہے جو دونوں میں ایک ربط پیدا کر رہی ہے, ربط پیدا کرنے کے بعد دونوں لفظ ایک ہو کے ایک معنی دے رہے ہیں کہ آدمی کھڑا ہے, کتاب نہیں ہے. ورنہ کتاب مانے کتاب ہوتا ہے, جدید مانے نیا ہوتا ہے. یہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ اس نسبت سے پیدا ہو رہا ہے جو دونوں کی ترکیب سے ہمیں ملی ہے. تو کہا جو نسبت سے, اسی نسبت سے تصدیق کیا ہوگی؟ متعلق ہوگی. اب آئیں گے مجال تصور. مجال تصور کی طرف کل ہم نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ یہ سب سے متعلق ہوتا ہے, ہر چیز سے. کیونکہ جو بھی آپ نے سنا, نیم کا پیڑ, اس کا ایک تصور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ کچھ آئے. املی کتنی لدی ہوئی ہے, آیا تصور ذہن میں. ٹھیک ہے. بندر, تصور آئے گا ذہن میں, آ جائے گا. تو ایسی صورت میں جتنی چیز, چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب, سب کے سب کیا ہوں گے؟ تصور ہوں گے. تصور سب سے متعلق ہوگا. دیکھیے مجال التصوری کیا ہے؟ مجال التصوری یعنی تصور کا میدان, تصور کا مجال, کہاں تصور استعمال ہوگا. جب مجال کہہ رہے ہیں, پینسل وغیرہ لے لیجئے گا آپ لوگ جن کے پاس نہیں ہے, پینسل, ربڑ, کٹر, پین, کاپی, ٹھیک ہے, جو نوٹ لگانا ہو لگائیے گا. کہہ رہے مجال یعنی میدان. مجال التصور, تصور کا میدان. تصور کس سے متعلق ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اما التصور فیتعلق بکل شیء. ہاں, تو تصور متعلق ہوتا ہے بکل شیء, ہر چیز سے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو, سواء کان حکما او غیر حکمین, چاہے وہ حکم ہو یا حکم نہ ہو. میں نے نیم کا پیڑ کہا ہے, اس میں حکم پایا جا رہا ہے؟ نہیں. ہم نے کہا سورج نکلا ہوا ہے, اس میں حکم ہے کہ نہیں ہے؟ حکم ہے. حکم ہے. سورج
सूरज पे हमने हुक्म लगाया निकलने का, तो यहाँ हुक्म है। हमने कहा नीम का पेड़, इमली का पेड़, वहां हुक्म नहीं है। तो कहा चाहे हुक्म हो या हुक्म ना हो, सब उससे तसव्वुर क्या होता है, मुताल्लिक होता है, सब में तसव्वुर पाया जाता है। समझ गए? और जो ऐसे कहीं नीम का पेड़ होगा, नीम का पेड़ होगा तो तो वहां एक अलग, वो अलग है। सही है, मुफरद कोई चीज लेंगे, मसलन मोबाइल, किताब, दरवाजा, घर, ये क्या है, यहाँ हुक्म तो है नहीं, हुक्म हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, मुफरद है। मुरक्कब होता तो हुक्म लगाते इसमें। सही, तो ऐसे में ये सब क्या है, तसव्वुर है। कह अम्मा तसव्वुरु, लेकिन तसव्वुर फयतअल्लक़ बिकुल्लि शैइन, तो ये मुताल्लिक होता है हर चीज से। सवाउन कान हुक्मन, चाहे वो हुक्म हो, औ गैर हुक्मिन, या हुक्म ना हो, मुफरदान औ जुमलतान, चाहे वो मुफरद हो या जुमला। हमने जो मिसाल दी, यानी जो हमने कहा कि मसलन नीम का पेड़, ये क्या है, मुफरद है। किताब मुफरद है, मोबाइल मुफरद है, तो मुफरद होगा उससे भी मुताल्लिक होगा तसव्वुर, और जुमला होगा उससे भी मुताल्लिक होगा। अच्छा, सबसे पहली बात, तस्दीक पहले होगी कि तसव्वुर पहले होगा? पहले तसव्वुर होगा। पहले तसव्वुर होगा, हर चीज का तसव्वुर पहले आएगा। पहले आप उसको दर्क करेंगे, बाद में उस पर हुक्म लगाएंगे, उसको सच मानेंगे या गलत मानेंगे। तो तस्दीक जहां पे इस्तेमाल हो रही है, मजाले तस्दीक जो है, वहां तसव्वुर का दखल है कि नहीं है ना? पहले तो मतलब को दर्क करेंगे आप, इदराक शय, किसी चीज को दर्क करना ही तसव्वुर है। दर्क करेंगे तब जाके उस पर क्या लगाएंगे, सही या गलत का हुक्म लगाएंगे। ठीक है, तो जब सही और गलत का हुक्म लगाएंगे तब जाके वो तस्दीक होगी, और जब तक तस्दीक नहीं है वही चीज क्या होगी, तसव्वुर। इसीलिए उन्होंने कहा चाहे मुफरद हो या जुमला। तो समझ गए तसव्वुर क्या होगा, कहां इस्तेमाल होगा। का तसव्वुरु फयतअल्लक़ बिकुल्लि शैइन सवाउन कान हुक्मन औ गैर हुक्मिन मुफरदन औ जुमलतन। औ माने जानते हैं बेटा, औ दिख रहा है वहां पे, औ यानी या औ यानी या, मुफरदन औ जुमलतन, मुफरद हो या जुमला। अब देखिए, हमारे पास तसव्वुर और तस्दीक की किस्में हैं। किसे तसव्वुर कहते हैं और किसको नहीं, तसव्वुर की कौन कौन सी किस्में हैं और तस्दीक की कौन कौन सी किस्में हैं। एक हमारे पास है, दोनों की दो किस्में हैं, एक है जरूरी और एक है नजरी। तसव्वुर की भी दो किस्में होंगी, तसव्वुर जरूरी, तसव्वुर नजरी। तस्दीक की भी दो किस्में होगी, तस्दीक जरूरी और तस्दीक नजरी। तो इसलिए जरूरी और नजरी को समझने के जरूरी और नजरी क्या है, ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए, स्क्रीन दिख रही है बेटा? नहीं दिख रही है ना? तो बोलना था ना। मैंने खुद ही लगाया था। चलिए देखिए, डस्टर कहाँ रखा है? जरूरी जिसमें फिक्र की जरूरत ना हो,
मुजर्रद हमने कहा आपके जहन में आ गया, दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, गौर व फिक्र की जरूरत नहीं है। नजरी इसका बरअक्स हो जाएगा। नजरी जिसमें फिक्र और तवज्जो की जरूरत हो, तवज्जो जाने हैं, फिक्र की जरूरत हो, नजरी। ये भी हो सकता है कोई चीज किसी चीज के लिए, किसी के लिए बदीही हो, किसी के लिए क्या हो जाए, नजरी। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? आपके लिए आम बात हो वो। बदीही उसको कहते हैं कि जिसमें हमें कुछ भी फिक्र करना नहीं है, सोचना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, वो जरूरी। और जिस पे दिमाग पे जोर डालना है वो सब क्या होगा, नजरी। तो जैसे मौलाए कायनात ने कहा कि उंगली कितनी है, ये बदही है। नहीं तो ये तो सबके लिए बदीही है कि उंगली कितनी है। इसको बोलेंगे बदीही कि कोई भी इंसान मुझे बता देगा कि नहीं बताएगा कि उंगलियां कितनी हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे पूछें कि अहकाम की कितनी किस्में हैं, मसलन शरीयत के जो अहकाम है, वाजिब, मुस्तहब, 5। आपके लिए क्या है ये, बदही है। आपके लिए क्या होगा, जरूरी, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या होगा, एक आम इंसान के लिए नजरी। आपसे हम वाजिबात नमाज पूछें, चूंकि आप रोजमर्रा उसी में, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वही चीज क्या हो जाएगी, जरूरी। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, नजरी। इसीलिए अइम्मा के लिए क्या है, सारे उलूम क्या हैं, जरूरी। हमारे नजरी। मौलाए कायनात किस तरह से जवाब देते थे सख्त सख्त मसाइल का, कि जिसमें अच्छे से अच्छा आकिल, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा क्या हो, गर्क हो जाए, डूब जाए, किताबें छान मारे, तब भी उसके जवाब न ला सके। चलिए देखिए, तो तसव्वुर भी जरूरी और तस्दीक भी जरूरी, तसव्वुर भी नजरी और तस्दीक भी नजरी। कहना तक़सीम तसव्वुरी व तस्दीक, तसव्वुर और तस्दीक की तक़सीम। कह रहे हैं यनक़सिमु कुल्लु मिन तसव्वुरी व तस्दीक इला क़िस्मैन। यनक़सिमु यानी तक़सीम होते हैं, कुल्लु मिन तसव्वुरी व तस्दीक, सब तसव्वुर और तस्दीक में से, ठीक है, यानी तसव्वुर और तस्दीक तक़सीम होते हैं इला क़िस्मैन। कितनी किस्मों में, 2 किस्मों में। मेहदी आ रहा है समझ में, इला क़िस्मैन हुमा ज़रूरी व नज़री। वो एक जरूरी है और एक नजरी। जरूरी क्या है, देखिए जरूरी की तारीफ क्या है और नजरी की तारीफ क्या है। जरूरी कहते हैं वह हुआ इदराकुल बदीही, ठीक है, इदराकुल बदीही, बदीही का इदराक करना, यानी एक आम चीज जिसमें फिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लज़ी ला यततल्लबु तफ़कीरन, कि जो फिक्र को तलब नहीं करती, यानी गौर करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। मुजर्रद आपसे सवाल हुआ और फौरन आपने उसका जवाब दे दिया। मैंने पूछा 4 और 2 कितने होते हैं, आपने कहा 6, तो ये क्या हो जाएगा, जरूरी। और हमने कहा 24 सते क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नजरी। क्योंकि इसमें थोड़ा क्या करेंगे, आप अपने जहन का इस्तेमाल करेंगे। तो जिसमें फिक्र की जरूरत ना हो, जहन पे जोर डालने की जरूरत ना हो, मालूमात को तलाश करने की जरूरत ना हो, मुजर्रद आपसे सवाल हो, आप उसका जवाब दे दें, वो क्या होगा, जरूरी। और जिसमें आपको थोड़ा जोर डालना हो जहन पे, वो हो जाएगा नजरी। अच्छा बताइए,
घर में चूहा घुसा है, चूहे को ढूंढने और मारने के लिए इंसान मेहनत कर रहा है, ये वहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, हाथ नहीं आ रहा है, ये जरूरी होगा कि नजरी? नजरी। क्या कहते हैं उलमा? नहीं, नजरी नहीं होगा। नजरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें अक्ल थोड़ी दौड़ा रहे हैं आप। वहां क्या कर रहे हैं आप? डंडा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो वहां जिस्मानी मेहनत है, अक्ली मेहनत नहीं है। सही है? तो नजरी सिर्फ वो मसाइल होंगे जिनमें आप अपने जहन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? पर अब देखिए मौलाना, नजरी की तारीफ पढ़ ली है, हुवल इदराकु गैरिल बदीही। ठीक है, इदराक करना गैर बदीही का। गैर बदीही किसको कहेंगे? कि जो आम फहम ना हो। वल्लज़ी यततल्लबु तफकीरन, कि जो फिक्र को तलब करता है, फिक्र को चाहता है, ताकि आप कुछ गौर व फिक्र करें और उसके बाद उसका जवाब पेश करें। तो जहां जहन को लड़ाने की जरूरत पड़ जाए उसे कहेंगे नजरी, जहां जहन पे जोर डालने की जरूरत न पड़े मासूम, उसे कहेंगे जरूरी। मिसालें देखिए, अमसिलातुन, अमसिला मिसाल की क्या है? जमा। ठीक है, अमसिला मिसाल की जमा है। ठीक है, अमसिलातुन, अलिफ कह रहे हैं अब तसव्वुर ज़रूरी, तसव्वुर ज़रूरी की मिसाल देखते हैं क्या है। का तसव्वुरिना, क्या पढ़ेंगे? का तसव्वुरिना, रे ना, क्योंकि काफ काफ तशबीह है जो हुरूफ जर में से है, बाओ ताओ काफ। ठीक है, तो काफ क्या है? ये हरफे जर है। कह रहे का तसव्वुरिना माना शय्ई व तसव्वुरिना मानल वजूद। जैसे हम तसव्वुर करें किसी चीज के माना या तसव्वुर करें किसी वजूद के माना को। मैंने कहा आप किसको कहते हैं? आपको गौर करने की जरूरत पड़ी, डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ी, किसी से पूछने की, ज़हन पे जोर डालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो जब कोई माना, अल्फाज के माना जिसको हम जानते हैं, वो हमारे लिए क्या है? तसव्वुरे जरूरी। अच्छा, तसव्वुरे जरूरी क्यों है माना? कौन बताएगा? वो तसव्वुरे जरूरी क्यों है, तस्दीक जरूरी क्यों नहीं? क्योंकि जनाब उसके माने वाज़े होते हैं, क्योंकि जरूरी तो खुद वाज़े होता है। हमने कहा माना शय, किसी चीज के माना, उसको हमने तसव्वुर में क्यों रखा? सीधा बेटा, क्योंकि उसमें हुक्म नहीं पाया जाता। हुक्म होता तो कहां जाता? वो तस्दीक में। लेकिन कोई लफ्ज के माना क्या होंगे? तसव्वुर में जाएगा कि तस्दीक में जाएगा? तसव्वुर में जाएंगे। नहीं होगा ना। क्या होता है? नहीं, तो सवाउन का ना हुक्मन और गैरा हुक्मिन, लेकिन वो मुजर्रद तसव्वुर नहीं है ना। तसव्वुर किसको कहते हैं? जहां हुक्म होगा, जहां इज़आन की बात है, समझ रहे हैं? इज़आन यानी यकीन, इत्क़ाद। तो जब माना शय, किसी चीज के माना, किसी लफ्ज के माना, तो वहां हुक्म कहां है? वो मुफरद है। जैसे मैंने आप कहा, ठीक है, आपको आप समझ गए, मां को आप समझ गए। हमने कहा बाप, बाप को आप समझ गए। तो ये क्या है? चूंकि ये जुमला नहीं है जिसमें हुक्म पाया जाए, मुफरद है, तो इसकी क्या होगा? गैरे हुक्म। समझ गए? या कोई इश्तिबाह है तो बताइए। ये क्या मतलब? हर चीज से मुताल्लिक, सबसे मुताल्लिक होगा, चाहे हुक्म हो या गैरे हो। हुक्म आ गए। हाँ, आया।
لیکن ہم جو پوچھ رہے تھے اس میں وہ حکم نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ جو میرا سوال تھا اس میں حکم نہیں ہے. اب دیکھیے، چلیے انشاءاللہ اس کو پھر کیا کریں گے، اس کو چلاتے ہیں. حکم دونوں میں، یعنی حکم دیکھیں، تصدیق جس سے متعلق ہوگی وہاں صرف اور صرف کیا ہوگا، حکم. تصور جس سے متعلق ہوگا وہاں حکم اور غیر حکم دونوں ہے. اور ہمارا جو سوال تھا کہ معنی شے، کسی چیز کے معنی، وہاں غیر حکم ہے. بس یہ ہے، باقی نہیں. الحمدللہ.